Praise the Lord, brothers and sisters. भाइयों बहनों प्रभु की स्तुति हो। I thank God. God has given strength and to me to stand before you with the word of God. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे बल दिया है आपके सामने प्रभु के वचन को बांटने के लिए। When you see that throughout the Bible, God calls people who always listen to His voice. जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो निरंतर उसकी आवाज़ को सुनते हैं Without having any confidence in their life. और अपने जीवन के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते हैं। See, if you see Saul, David, Samuel, nobody is. See, if you see Saul's life, he is running away. David also same thing only, right? और शाऊल के जीवन के बारे में शमूएल हो या दाऊद अपने जीवन के संदर्भ में वो भागते सब एक से जैसे हैं। Like a sheep listening to a shepherd. और जैसे एक भेड़ जो होती है अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है। At first glance, when you, as a neutrally, if you hear, we can say that, okay, we will think that, hey, am I a slave to the God? और पहली बार हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्या मैं परमेश्वर का गुलाम हूँ? It's not like that. ये ऐसा नहीं है। It's a relationship between father and the son. और ये एक पिता और पुत्र उनके बीच का एक संबंध है। It's a helpless dependent upon the father. और ये एक असहाय रीति से परमेश्वर के ऊपर की निर्भरता है। I want to look upon 2-3 characters in the Bible like that always depends upon the God. और बाइबल के अंदर 2 से 3 ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे जो निरंतर परमेश्वर के ऊपर उनकी निर्भरता होती है। If you turn to Genesis chapter 6, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, there we see the life of Noah. हम नूह के जीवन के संदर्भ में देखते हैं। And why God have chosen Noah, we'll see that. और क्यों परमेश्वर ने नूह को चुना उसको हम यहाँ पर देखेंगे। Before that, we'll read certain words. What is the condition of that world where Noah was living? और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पहले कि जिस संसार के अंदर नूह रहता था उसकी अवस्था क्या थी। And 6:11 it is written, the world was corrupt, filled with violence, and all flesh had become corrupted. और वहाँ लिखा है कि 6वें अध्याय के 11 वचन में उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। Brothers and sisters, if you look upon this world also, we can say this, we are living in a world like similar to that Noah's. और यदि आज हम इस संसार में इस धरती को हम देखें इस पृथ्वी पर तो हम भी वैसे ही समय में जी रहे हैं जैसे नूह का समय था। But in this world only Noah's life stands out. लेकिन ऐसे संसार के अंदर ही नूह का जीवन प्रकट होकर बाहर आता है। And Genesis chapter 6 verse 8 says like Noah found favor in the eyes of the Lord. और उसी अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। And we know all the story like God is planning to destroy the whole world. और हम पूरी कहानी को आगे जानते हैं कि परमेश्वर कैसे तय करता है कि सारे संसार को नाश करेगा। And God is giving instruction to Noah from 14th verse. और 14 वचन से आगे परमेश्वर कुछ सूचनाएं हैं जो नूह को देता है। To build the ark using the gopher wood. और यहाँ पर जो एक लकड़ी का इस्तेमाल करके वहाँ पे जहाज को बनाने को कहता है। And 14 to 16 it will tells about the measurements of the boat, ark, what is a window, door and all those things. और 16 वचन से आगे हम देते कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी को जहाज बनाना है और उसकी कितनी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सारे जो नाप है वो परमेश्वर उस नूह को देता है। Even though I read and know the Noah story, but when I meditated very recently I understood that ark is having only one window and one door. और यहाँ पर जब मैं इस कहानी को बहुत बार पढ़ चुका हूँ लेकिन जब मैं हाल ही में इसको पढ़ रहा था मुझे पता चला कि उस जहाज को एक ही खिड़की थी एक ही दरवाजा वहाँ पर था। Can you imagine that you're still living in a house with one window and one door? और क्या आप ऐसे घर की कल्पना कर सकते हैं खिड़की एक ही है दरवाजा भी एक ही ऐसे घर में आप रह रहे हैं। But there Noah is not giving suggestion to God, can he have some balcony because I am having 3 sons, wife is there, like that. He's not suggesting to God. और नूह यहाँ पे परमेश्वर को सलाह मशवरा नहीं करता है कि मेरे 3 बेटे हैं उनकी पत्नियां भी है बालकनी अच्छा रहेगा बालकनी बनाते ऐसा कोई सजेशन नहीं देता है। Wife आके no, after washing the clothes where I can dry the clothes. और उसके बाद नूह की पत्नी ये नहीं बोलती कि कपड़े धोने के बाद सुखाएंगे कहाँ पर इसको। Even his sons or daughter-in-laws not coming to know and telling all those things. और यहाँ पे उसकी बहू जो है या उनके जो बेटे हैं ये भी आकर उसको नहीं कहते हैं। Noah was silently listening to God and obeying God. पूरी रीति से शांत रीति से नूह परमेश्वर को सुन रहा था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था नूह। That's why it is written 2 times in the Genesis chapter 6:22 and 7:5 says that Noah did
everything just as God commanded him. और उत्पत्ति 6 अध्याय की 22 वचन में और 7 अध्याय में भी हम इसी को पाते हैं कि परमेश्वर की इसी आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। God, no, I am not going to any suggestion. Only one window, one door. That's enough. और कोई सजेशन, कोई सलाह परमेश्वर को नहीं देता है, एक खिड़की, एक दरवाजा काफी है। Because of that silent obedience of Noah, it is written in 1 Peter chapter 3, 20 to 21. पहला पत्रस 3 अध्याय 3, 20 and 21. 20 और 21 वचन। It is written like it, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of clear conscience towards God. और पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 वचन, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसने शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। Yeah, it is clearly written. He is living in a world where all the people are disobeying God. Noah only stands alone for obeying the God. और यहाँ पर नूह ऐसे समय में जी रहा था जहाँ हर व्यक्ति परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जी रहा है, लेकिन नूह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा। It is written, not a removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि अब तुम्हें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, लेकिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। Like what I will say, we are living like, okay, fine, Lord, we do some sins and come to Lord, please forgive me. We don't have the clear conscience. और कई बार हम पाप करते हैं, प्रभु के सामने आकर कहते हैं कि प्रभु अब तू मुझे साफ कर दे। हमारा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं होता है। I want to turn one more verse about Noah written Hebrews 11:7. इब्रानियों 11:7 11:7 says, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. और विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज को बनाया। I want to read from the Message translation. और मैसेज अनुवाद में मैं पढ़ना चाहूंगा। It's nicely written. By faith Noah built a ship in the middle of dry land. और यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा नूह ने एक ऐसी बंजर जमी थी, वहां पर उसने उस जहाज को खड़ा किया, बनाया। He was warned about something he couldn't see. जो बातें वो नहीं देख पा रहा था, उनके संदर्भ में नूह को चेतावनी दी गई थी। And what Noah did, and acted on what he was told. और जो उसको कहा गया था उसके ऊपर उसने काम किया। What is the result? परिणाम क्या था? His family was saved. उसके परिवार का उद्धार हुआ। His act of faith drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the rightness of the believing world. और उसके विश्वास के उस कार्य के द्वारा जो परमेश्वर का जो विश्वास का जो जीवन है और जो अनाज्ञाकारिता का संसार है, उसके बीच में एक रेखा को उसने तैयार किया। Dear brothers and sisters, God is looking at right now this church to find out a Mr. Noah, a Mrs. Noah, a son of Noah's and daughter-in-laws of Noah. और यहाँ पर परमेश्वर जब इस कलीसिया को देखता है तो परमेश्वर देखता है कि यहाँ पर कोई श्रीमान नूह मिले, श्रीमती नूह या उनके बेटे और बहू या ऐसे लोग नूह के समान के लोग इस कलीसिया के अंदर पाए जाए। Just one person among us. और एक व्यक्ति हो हमारे मध्य में केवल। Among us, मतलब I am including my family also, me also. और ये मेरा परिवार भी इसके अंदर आता है। Someone who draws a sharp line between the evil of the unbelieving world and the righteousness of the believing world. और ऐसा एक व्यक्ति जो संसार की दुष्टता जो है, परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी जो बातें आज्ञाकारिता, उसके बीच के अंदर एक अंतर को ला सके। I am just imagining Noah's one more life when he is going for wood and constructing that big ark for the Lord. और मैं कल्पना करता हूँ कि जब वो बड़े जहाज को बना रहा था और वहां पर उस लकड़ी को लेने के लिए वो जा रहा So होगा। it is on the finishing stage.
stage. और वहां पर एक बहुत ही अंत के फिनिशिंग स्टेज में वो होगा। His friends will, Arey, what type of ship you are constructing, or boat you are constructing, only one window, one door. What is this? उसके मित्र आकर उसको कहते हैं कि किस प्रकार का जहाज भाई तू बना रहा है, इसके अंदर एक खिड़की है, एक ही उसके अंदर दरवाजा है, किस प्रकार का ये है? Noah maybe replied, I don't have any comments. और नोहा ऐसे बोलता होगा, मेरे पास कोई कमेंट नहीं है। This attitude of Noah, completely depending upon the Lord, helped him to save his whole family. और नोहा का इस प्रकार का जो रवैया था कि परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता, इसी रीति से उसने अपने पूरे परिवार का उद्धार, वो बचाता है अपने परिवार को इसी के द्वारा। If you want restoration in your family, we have to lead a life that's silently depending upon the Lord. और यदि हम अपने परिवार की पुनः स्थापना को चाहते हैं तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो एक शांत रीति से केवल परमेश्वर पर ही निर्भर जीवन जीता हो। Let us turn to another character in the Bible. और एक हम चरित्र को देखेंगे बाइबल के अंदर। We all know Moses' story. हम मूसा की कहानी को I जानते have हैं। taken simple stories so that the children can also understand. मैंने एकदम साधारण सी कहानियां ली है ताकि बच्चे भी इसको समझ सके। The Moses was running away from Egypt to Midian. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र से मिद्यान की ओर भाग कर जा रहा था, Almost 480 kilometers he is running away. 480 किलोमीटर वहां पर वो भाग कर जा रहा है। We know that he is staying with his father-in-law, right? और हम जानते हैं कि अपने ससुर के साथ वो वहां पर रहता है। 40 years he is staying there. 40 साल तक वहां वो रहा। And at the age of 80, God is calling Moses to come back to Egypt. और 80 साल की जब उम्र मूसा की होती है तब परमेश्वर उसको बुलाता है कि मिस्र में जाने के लिए। But initially Moses was called as a prince of Egypt, right? लेकिन पहले मूसा को जो है वो मिस्र का एक राजकुमार करके कहा जाता He था। was trained like that. उसको इसी प्रकार शिक्षा दी गई थी। So I am just imagining he may be trained in standing in a pulpit and talk anything like that. He was trained like that. और उसको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, पुलपुट में अच्छा बात करना है और अच्छे से वहाँ पे बताना, इस प्रकार से शिक्षा दी गई होगी। And he has given a wife of Sipporah. Wife as Sipporah. और उसको एक पत्नी दी गई थी ना, जिसका नाम सिप्पोरा था। Even though he is staying 40 years with Jethro, he don't have any land of his own or sheep of his own, nothing. और यहाँ तक 40 साल तक अपने ससुर जेत्रो के घर पर वो रहता है, लेकिन अपना कोई भेड़ या अपनी कोई जमीन उसकी नहीं थी। Because there it is written, Moses is taking the Jethro sheep to feed in the wilderness. Then God have appeared to him. It is written in the Bible like that. बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि मूसा जो जित्रो की जो भेड़ें थी उसको लेकर उस पहाड़ पर चराने के लिए जाता है और वहां पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है। इस प्रकार से लिखा गया है बाइबल Can में। you imagine that 40 years Moses staying with his wife's house? He cannot say anything for his own except his wife. आप कल्पना करके देख सकते 40 साल तक मूसा अपने ससुर के घर पर रहता है, अपने पास रखने के लिए, दावा करने के लिए उसका कुछ भी उसके पास नहीं है। Can you imagine ourselves? Okay, at least we have something to hold on, fine, from the wife house or our own house. और अभी तो हमारे पास शायद पत्नी के घर से, अपने खुद के घर से कुछ तो है हमारे पास रखने के लिए, अपना कहने के लिए। Because of that, such a broken man Moses was. Exodus 3:11, Moses speak to the Lord, "Who am I?" और इसी प्रकार का एक टूटा हुआ व्यक्ति वो मूसा था। और निर्गमन 3:11 में मूसा परमेश्वर को कहता है कि मैं कौन हूँ। In Exodus 4:1, he expressed his insecurity that what if they do not believe me or listen to me and say that Lord did not appear to you. और निर्गमन 4:1 के अंदर अपनी असुरक्षा को जताते हुए कहता है कि प्रभु शायद मैं उनके पास जाऊंगा और वो मुझसे कहेंगे कि ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे मेरी बातों को सुनकर। And 4:10, it is he is pleading to Lord, I had never been eloquent neither in the past. I am not a spoken person. I am slow to speech and tongue also. और वहाँ 10 वचन में कहता है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो मैं पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह का और जीभ का भद्दा हूँ। You can know that Moses once was trained like a prince. Now he is saying, Lord, I cannot talk anything before anybody. और मूसा एक समय पर बोलने में जब उसको पूरी तरह से तालीम दी गई थी, अब ऐसे समय पर आ चुका है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, ना मैं बोलना जानता हूँ। And you know the story. Moses is at last decided to come to Egypt. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत में वो वहाँ पर बुलाया जाता है मूसा को मिस्र में जाने के लिए। And lot of things are happening. He is going to Pharaoh telling that deliver my people. He will come back to Israel. Then Pharaoh will not deliver. Again he will going
and telling something, again that it is not getting delivered, again going there. It is happening almost 9 times. और 9 बार अक्सर ऐसा हुआ कि मूसा जाकर था फिरौन के सामने कि मेरे लोगों को जाने दे, और वापस लौट आता था इस्राएल में। वापस वो जाता, ऐसा 9 बार लिखा गया है कि वापस वो जाकर बार बार वापस लौट आता था। I was imagining me in that position. मैं अपने आप की कल्पना कर रहा था उस स्थान के ऊपर। See, coming to Israel people, definitely Israel people, I said, "Arey, what type of leader you are? What you are talking there? You don't know how to talk to a king also." और यहाँ पर वो शायद बार बार मूसा इसराइलियों के पास आता होगा, तो इसराइली कहते थे किस प्रकार का नेता तू है, तुझे बात करना भी नहीं आता है। That's why maybe one time God is telling to God also, Lord, what can I do on these circumstances? और वो एक बार ऐसा भी कहता है, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? But Israel people is watching the silent response of Moses to who were complaining against him. और वहां पर वो उस उत्तर को देखते कि जो कोई उसके विरोध में कुड़कुड़ाता है, उस उत्तर को, परिणाम को देख पाते हैं। That's why when the last plague comes, when Moses was telling in Exodus 12:7, you have to put a blood on the top of your door, all the Israel people obeyed Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत में जब ऐसा आता है कि अंतिम जो वहाँ पे पीड़ा परमेश्वर भेजता है कि उनके दरवाजे की खटकों के ऊपर उनको लहू लगाना होता है, और सारे लोग जो है मूसा की सुनते हैं। Because the silent response of Moses and sitting in the presence of the God, all the Israel people saw him. और क्योंकि सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले मूसा को देखा। And that's why it is written in Hebrews 11:24 to 28, it is written about Moses like this. इब्रानियों 11:24, Hebrews chapter 11:24 to 28. 24 से 28। It is written, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the sons of Pharaoh. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। He chose to mistreated along the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. और इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको उत्तम लगा। I want to turn your attention. Choose to mistreat with the people. Moses had chosen. और यहाँ पर वहाँ पे लिखा है कि उसने उस भाग को चुना कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को उत्तम भाग को चुनता है। He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt. और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा उसने। Because he was looking ahead to his reward of God. क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. विश्वास ही से राजा की क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। He persevered because he saw him who is invisible. क्योंकि वह अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहता था। Because of the silent dependence of Moses over God, he could able to deliver the whole Israel community out of Egypt. और क्योंकि मूसा परमेश्वर पर शांत रीति से परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना जानता था, इस कारण से इस्राएल के सारे लोगों को मिस्र की गुलामी से वो बाहर निकाल पाया। Brothers and sisters, if you want deliverances for the whole family or whatever sins you are having, you have to silently depend upon the God. और भाइयों और बहनों, यदि आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके परिवार के अंदर किसी के छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से शांत रहकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना होगा। You have to be ready to mistreat of experience of others. और अन्य लोग जो आपको दुख देते हैं, उन सारी पीड़ा को सहन करने के लिए आपको तैयार होना होगा। I want to turn one attention to a New Testament character. और एक नए नियम का चरित्र मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। And I want to turn to your crucifixion of Jesus Christ. और यीशु मसीह के क्रूस पर जब चढ़ाया जाता है यीशु मसीह को, And I want to turn the attention to the thieves crucified right and left of Jesus Christ. और यीशु मसीह की दाईं और बाईं और जो चोर जो थे, डकैत, उनको जब चढ़ाया गया था, क्रूसित किया गया था, उनके संदर्भ में। And Luke chapter 23:42 it is written like this. और लूका 23:42 में इस प्रकार लिखा गया है। And one of the thieves is saying, Jesus, remember me when you come in your kingdom. और एक जो वहां पर जो डाकू जो था, वो कहता है चोर, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। Recently when I read this one, then I got doubt, hey, how the criminal or thief came to know that Jesus is going to heaven? और कैसे, मैं जब इस पे सोच रहा था, तो कैसे एक कुकर्मी और एक चोर डाकू को कैसे पता चला होगा कि यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग को जाएगा? Because we read and we so many studies we heard that he is the worst criminal in this world. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी अध्ययन के बाद हमने देखा कि वो जो व्यक्ति जो पूरी तरह से एक बुरी तरह का एक कुकर्मी या एक अपराधी है।
But that thief is telling to Jesus, Jesus, remember me when you come to your kingdom. लेकिन यही अपराधी, यही डाकू जो है यीशु मसीह से कहता है जब तो अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। How this criminal came to know that Jesus is the Son of God? और कैसे इस अपराधी को पता चला हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? How he came to know that he will sit on the heaven along with Father? और कैसे उसको पता चला होगा कि यीशु मसीह अपने पिता के साथ उस स्वर्ग में अपने उस सिंहासन पर बैठेगा? How he able to understand that he will one day sit on the throne and for judgment? और कैसे उसको पता चला कि यीशु मसीह एक दिन उस न्याय के आसन पर बैठेगा न्याय करने के Because लिए? without that understanding those things, he cannot tell like that, Jesus, remember me when you come into your kingdom. In your kingdom. और ऐसे समझ के बिना वो कहीं नहीं पता कि प्रभु तू जब आए अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, ऐसा नहीं कह पाएगा। God revealed me that the thieves saw Jesus' life during the crucifixion period. और मैं ये सिखाता है कि यीशु मसीह उस चोर, उस डकैत ने यीशु मसीह के जीवन को उस क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय के दौरान देखा। Until he carried the cross, he heard about Jesus Christ. जब तक यीशु मसीह वहां पर उस क्रूस को उठा रहा था तब तक उसने यीशु मसीह के जीवन के बारे में सुना था। And from the way to the cross, carrying the cross along with Jesus, and at the cross, he have seen the Jesus life. और जब ये यीशु मसीह के साथ उस क्रूस को उठाकर उसके साथ साथ उस जगह पर जहां क्रूस पर चढ़ाया जाना था वहां जा रहा था, उसने यीशु मसीह के जीवन को देखा था। At every moment of life, he has seen that Jesus is suffering everything silently. और हर उस क्षण के अंदर उसने देखा कि यीशु बड़े शांत रहकर उन सारी पीड़ा और वेदनाओं को सह रहा था। How will you come to know that these thieves have been along with Jesus? और हम कैसे पता कर सकते कि ये डाकू जो है यीशु मसीह के साथ साथ ही अपने क्रूस को उठा रहे थे? And it is written, Luke chapter 23:32 says, उसी अध्याय के 32 वचन में लिखा है, two others also who were criminals were being led away to put to death with him. और दो मनुष्य जो कुकर्मी थे उनके साथ मार डालने को ले चले। That means when Jesus is carrying the cross to the Golgotha, the two thieves also carrying their cross to the Golgotha. और इसका मतलब यीशु मसीह जब गुलगुता नाम की जगह पर उस क्रूस को उठाकर जा रहा था, ये दो जो डकैत या कुकर्मी थे ये उसके साथ अपने क्रूस को उठाकर चल रहे थे। When Jesus was sent to earth, the Father clearly told Jesus that you are going, I am sending for this one to save the people from their sins. You have to get crucified also. और जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा कि तुझे संसार में इसलिए भेजा जा रहा है कि तू सारे पापों को लेकर उस क्रूस के ऊपर मारा जाए। But I was just thinking, for that reason, this is more than enough. When you go to Pilate, Pilate says, okay, fine, you take it for crucifixion. Next moment, you go in this one and go and crucify. That is a example or that is the imagination I am having. और एक कल्पना जो मैं करता हूँ कि हाँ अगर क्रूस पे ही चढ़ना है तो पिलातुस के पास जाकर उसको एक न्याय मिल जाता है, उसके बाद तुरंत ही क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, उतना हो सकता था। That is more than enough. ये इतना काफी था। But from Pilate palace to Golgotha, almost 30 kilometers, and he is traveling almost 1.5 hours, 2 hours. Maybe it took like that. और यहाँ पर पिलातुस का जो महल है वहां से गुलगुता की जो जगह है जहाँ पर उसको क्रूसित करना था, 30 किलोमीटर का ये अंतर है लगभग, और वहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना है। And Jesus is on the cross for 6 hours. और 6 घंटे तक यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है। I don't think so. 6 hours is not required. As my imagination, it is maybe 1 hour or half an hour is more than enough. और मुझे लगता है मेरी कल्पना के अनुसार 6 घंटे की आवश्यकता नहीं, आधा घंटा 1 घंटा काफी है। But God told me that I want to teach you one lesson from this crucifixion और इस also. क्रूस के चढ़ाए जाने से मैं तुम्हें एक पाठ को सिखाना चाहता हूँ। And when thieves are accompanying Jesus to the Golgotha, और जब वो डाकू जो है यीशु मसीह के साथ साथ अपने क्रूस को उठाकर गुलगुता की ओर जा रहे थे, in Luke chapter 23, 27 to 31, we read like this. और 27 उसी अध्याय के 27 से 32 वचन में हम पढ़ते हैं, And the woman following him, they started crying. और वहां पर जो स्त्रियां उनके पीछे चल रही थी वो रो रही थी। But Jesus saying that comforting the woman who are mourning and lamenting. और यहाँ पर जो विलाप कर रही थी, रोने वाली स्त्रियों को सांत्वना देते हुए यीशु मसीह उनसे कहता है, And Matthew 27:30, it is written like this. मत्ती 27 में लिखा है, When they have been beating with his club and spitting on him. जब उस पर थूका जा रहा था, सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे थे। 27:30. They spat on him and took the reed and began to beat on his head. उस पर वो थूकने लगे और उस पर सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे।
But God, Jesus is not uttering a word. लेकिन यीशु मसीह एक शब्द तक नहीं बोलता है। It talked to me like, if anybody harms me like that, can I keep quiet like Jesus? और जब मैं इस प्रकार सोच रहा था कि यदि कोई मुझे इस प्रकार से वेदना देता है, पीड़ा देता है जैसे यीशु को दिया गया, क्या मैं शांत रह पाऊंगा? When I driving a car or bike or we know that auto rickshaw drivers or bus drivers started abusing it. Can we have the quiet spirit inside and outside? और जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं या बस चला, तो बस वाले, ऑटो वाले जब वहाँ से कट करते हैं, तो क्या हमारे अंदर वो शांत आत्मा वहाँ पर हो सकती है? Any of our family members or partners beat us or do harm to us can be silent inside or outside. और हमारे परिवार के लोग या अन्य कोई लोग जो हमें हमें वेदना देते, हमें दुख देते, तो क्या हम वहाँ पर शांत रह सकते हैं? Once Sakangal have shared one testimony of one of the brother in CFC Bangalore. और एक बार भाई जैक ने इस प्रकार के एक भाई के बारे में बताया था जो भाई CFC बैंगलोर के थे। He said that one brother is alone coming in the family to the church. और वो भाई एक मात्र थे जो कलीसिया में आते थे अपने परिवार से। His wife is not coming to the church. उनकी पत्नी कलीसिया में नहीं आती थी। So then Sakangal asked, how is your spiritual life? और वहाँ पर भाई से भाई जैक ने पूछा कि आपकी आत्मिक जीवन भाई कैसे चल रहा है? I was fine. और उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। Then Sakangal said, how is your family life? और उन्होंने कहा कि आपकी पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा That है? is also fine. वो भी अच्छा है। Then uncle have asked, how it is fine? और भाई जैक ने कहा कि कैसे ये अच्छा चल रहा So है? when I reaching home, जब मैं घर पर पहुंचता हूँ, sometimes my wife will get angry. कई बार मेरी पत्नी गुस्सा हो जाती है मुझ पर She will throw the plate on me. और वो प्लेट मुझ पर फेंकती है Some glass will throw at me. और कई बार ग्लास फेंक देगी Sometimes I will catch that one. और कई बार मैं उसको कैच कर लूंगा Sometimes it hit on me. और कई बार वो मुझ पर लग जाता After है। when she was silent, और जब उसके बाद वो शांत हो जाती है and I will tell her that I love you. और जब वो शांत हो जाती है उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Sakangal said, those are the real brothers following the Christ. और भाई जैक ने कहा कि ये सच्चे भाई है जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। Brothers and sisters, are you able to? Me also, God is telling, can you be silent like that? और प्रभु मुझसे भी कहता है, हम सभी से कहता है, क्या हम इस प्रकार से शांत रह सकते हैं? And we read, come to Luke chapter 23:35. और लूका 23:35 A series of things where Jesus was silent. और यीशु मसीह यहाँ पर ऐसी घटनाओं के अंदर पूरी रीति से शांत रहता है। 23:35. लूका 23 उसका 35 वचन। Rulers are taunting him. Rulers trying to taunt him. और यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश के अंदर लिखा है कि जहाँ वो जो सरदार जो थे या जो अगुवे थे वो यीशु मसीह पर हंस रहे हैं। And taunting मतलब to make somebody angry or upset of saying unpleasant or cruel things. और वहाँ पर उपहास करना या हंसना मतलब जो बातें अच्छी नहीं लगती है जिसको उस बातों को उसके विरोध में बोलना। And there it is written, he saved others, let him save himself. If he is Christ of God, his chosen one. और ये लोग सरदार भी जो नेता वो उपवास करते क्या कह रहे कि अरे इसने तो औरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है, उसका चुनाव हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। And verse 36 it is written, soldiers mocked him. और यहाँ पर 36 वचन में लिखे सिपाही भी आकर उसका ठट्ठा मस्करी करने लगे। If you are the king of kings, say save yourself. और यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। And Matthew 27:43, don't read. Recall the chief priest also mocking him. He trusts in the God, let God rescue him. Now he delights in him. He only said, I am the son of God. और मत्ती में ऐसा लिखा है कि वहाँ पे जो मुख्य जो याजक था वो भी परमेश्वर यीशु मसीह का वहाँ पर मजाक उड़ाता है कि यदि वो सच में परमेश्वर पर उसका बेटा है तो अपने आप को बचाए वो। But Jesus remained silent. यीशु मसीह इन सारी बातों के अंदर वो शांत रहा। Brothers and sisters, maybe your families will be your colleagues or friends are saying, are you a believer for so long? शायद आपके परिवार वाले, आपके जो साथ में कर्मचारी है, आपके लोग कहेंगे कि क्या इतने सालों से तुम विश्वासी हो? You are praying for so long? आप इतने सालों से, आप इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो। What is happening to your life? आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है? Is there any progress? क्या आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी है? Are you happy with your life? आप अपने जीवन के साथ क्या खुश है? Are you improving financially? क्या आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो रही है? Sometimes you alone going to believing in Christ, can you build a house at all of your own? और कई बार हमें ऐसा कहा जाता है कि तुम इतने सालों से विश्वासी, क्या आप अपना घर भी कभी बना पाओगे? Maybe you are praying for something for so long, maybe 30 years, 40 years, you are waiting for the Lord. और कई सालों से 30 साल 40 सालों से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं आप। If
God the Father allowed these situations to happen in Jesus' life, how much more He allow us. और यदि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में इन बातों को होने की अनुमति देता है, कितना अधिक वो हमारे जीवन में होने की अनुमति देगा And तब। again, if you see the Jesus life in John chapter 19, it is written like this. यूहन्ना 19 में हम यीशु मसीह के जीवन के संदर्भ में हम इस प्रकार से पाते हैं, All those things, that thief on the cross or accompanying him, he is seeing and watching. इन सारी बातों को वो जो चोर जो था इन सारी बातों को देख रहा है। And if you read chapter 19, 25 to 27. और 25 से 27 में जब हम देखते हैं, Jesus is telling to his mother that this is your son, and for the son he is saying that this is your mother. और वहां पर यीशु के क्रूस के उसकी माता वहां पर होती है और वो कहता है कि His mother, but 25. Therefore the soldier, but standing by the cross of Jesus, here is his mother, his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus then saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said, his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. अतः सिपाहियों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों से जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। Jesus is there. In our words, we can say, telling to mother, mother, I don't want any land in my name, written in my name. और यहाँ पर जैसे यीशु मसीह अपनी माता से कह रहा है कि मुझे कोई भी जमीन मेरे नाम पर नहीं चाहिए। I don't require any gold of from your whatever secured in your family assets. और आपके परिवार से खानदान से मिला हुआ कोई भी सोना या चांदी मुझे कुछ भी तुम्हारा नहीं चाहिए। I don't want any ancestry of yours. और यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार की वंशज से मिलने वाला कुछ नहीं चाहिए। And Luke 23:34, the thief is seen the prayer of Jesus, forgive them for they do not know what they are doing. और लूका 23:34 में जैसे यीशु की वो प्रार्थना वो चोर सुनता है कि प्रभु तूने माफ कर, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या करते हैं। There one more prayer is there, my God, why are you forsaken me? और एक प्रार्थना वहां पर, हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। Initially these both thieves were being mocking Jesus. और आदि में ये दोनों ही जो डाकू जो थे यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे होंगे। They are cursing Jesus. It is written in Matthew 27:44. और यहाँ पे मत्ती 27:44 में लिखा है कि ये यीशु मसीह को जैसे श्राप दे रहे थे। It's not like that the thief was initially he was having compassion to Jesus. और ऐसा नहीं था कि आदि से ही इस चोर जो था यीशु मसीह के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता था, ऐसा नहीं था आदि में। But the Jesus attitude to many things for that 1 hour of travel to Golgotha and 6 hours in the cross changed that person. और यीशु मसीह का जो रवैया था उस गुलगता के स्थान पर जाने का 1 घंटा और 6 घंटे उस क्रूस के ऊपर क्रूसित होने का, उन सारी बातों ने उस चोर उस डकैत के जीवन को परिवर्तित कर दिया। God wanted teach us this silent life of Jesus. और परमेश्वर हमें यीशु मसीह का वो शांत और गुप्त जीवन सिखाना चाहता है। And he endured everything silently for me and you. और आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने इन सारी बातों को शांत रह के सहा है। Jesus' silent prayer touched that violent criminal. और यहाँ पर यीशु मसीह की शांत प्रार्थना ने उस अपराधी को जो इतना ज्यादा कुकर्मी था उसको स्पर्श कर लिया। He may not be praying loudly like forgive them. He will be silently praying, looking to heaven and praying, Father, please forgive them. और यीशु मसीह जोर से चिल्लाकर प्रार्थना शायद नहीं कर रहा होगा, उसने शायद बहुत ही कम उन प्रार्थना किया होगा कि प्रभु पिता तूने क्षमा कर। The thief was thinking that I cannot bear this nails in my hand, nails in my foot, and I am cursing many because I accumulated so many money. I am worrying about that one. But that man just adjusted to him. He is telling that forgive him, forgive them who crucified और चोर जो है सोच रहा होगा कि मेरे हाथों में मेरे पैरों में तो कीले ठोके जा रहे, इतना ज्यादा पैसा मुझे मिला था, सब कुछ खोने के बाद, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से कैसे कह पाता है कि प्रभु तूने क्षमा कर। The bearing of Jesus Christ made that criminal to change his attitude towards. और यीशु मसीह की जो सहनशीलता थी, जिस प्रकार से उसने सहा, उस रवैये ने उस चोर उस डकैत के जीवन को परिवर्तित कर दिया। But thief was thinking that okay fine, I cannot forgive those people. Then how can this man can forgive? और वो चोर सोचता होगा कि मैं इन लोगों को क्षमा नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कैसे क्षमा कर सकता है। That means definitely he is a son of God. और ये वास्तव में परमेश्वर का ही पुत्र है। Brothers and sisters, we are following Christ. और भाई और बहनों, हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। My sister shared one verse in that continuation. It is like that Jesus is our forerunner. और यीशु मसीह, हमने सुना कि यीशु मसीह, सिस्टर एमी ने बताया कि हमारा यीशु मसीह अग्रदूत है।
But if you want to follow Jesus Christ, we have to choose suffering like Jesus Christ. और यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के समान दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। That's why I was imagining like a thief was thinking that this man can forgive this many people. So definitely he will be a son of God. Definitely he will be sitting on the heaven. So he will be forgiving them. That's why he silently prayed, Lord, please remember me just once when you are in the heaven. और जब ये व्यक्ति सोचता है कि मैं तो माफ नहीं कर पाता, लेकिन ये व्यक्ति माफ कर पाता है, उसने यीशु मसीह को देखकर उस पर विश्वास किया कि सच में प्रभु जब तू होगा, प्रभु तू तेरे राज्य में आएगा, मुझे मेरी सुधि लेना। Brothers and sisters, God can look from heaven to you and me, see this life of Jesus Christ. और क्या भाई और बहनों, परमेश्वर स्वर्ग से हमारी ओर देखकर इस प्रकार का जीवन हमारे जीवन में देख सकता है? And I want to turn 2 verses and want to close this. और 1-2 वचन हम देखेंगे। Matthew chapter 5, 13 and 14. मत्ती 5 अध्याय 13-14। There it is written, you are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। 14 is written, you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। Both the things, if unless it will melt to the society, it will not get useful for the society. और जब तक वो समाज लोगों में जाकर नहीं मिल जाएगा, तब तक वो काम में नहीं आएगा। Because if you put a salt in a curry or something like that, जब आप करी बनाते हो, उसके अंदर आप जब नमक डालते हो, salt will go inside that curry. और वो जो नमक है पूरी तरह से उस करी के अंदर चला जाएगा। We cannot touch like and see the salt, where is salt? और हम उस नमक को छू नहीं सकते कि कहां पर दाल में, मुझे छूने दो, नहीं छू पाओगे आप। This room will be dark when the light comes, so I cannot see where is light. Light is there. और यदि इस कमरे के अंदर अंधकार है, एक लाइट जला दो, आप उस लाइट को छू नहीं पाओगे कि लाइट कहां पर है। हर जगह पर वो लाइट होगी। That's why it is in 14 verse. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। I want to read one more verse. एक वचन को पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 1:14 4. दूसरा थिस्सलुनीकी Chapter 1 verse 4. पहला अध्याय वचन 4। I know that many brothers and sisters struggling more than me, standing alone in your families. और मैं जानता हूं ऐसे भाई बहन जो मुझसे अधिक उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं अपने घर में, जब वो मसीह के लिए अकेले खड़े अपने परिवार के अंदर। I born in a Christian family, so I don't have any persecutions from my family. और मैं तो मेरा जन्म एक मसीह परिवार के अंदर हुआ, तो ऐसा सताव मेरे परिवार के अंदर मैंने शायद नहीं देखा है। So I know that many brothers and sisters standing alone in the family. मैं ऐसे भाइयों बहनों को जानता हूं जो अकेले मात्र परमेश्वर के लिए अपने परिवार में खड़े हैं आप। I am still remember one of the sisters' testimony in Hyderabad. और हैदराबाद में एक बहन जो है, अभी भी उनकी गवाही को मैं याद करता हूं। She was alone standing in this family. और उनके परिवार में एक मात्र वो थी जो परमेश्वर के लिए खड़ी थी When the विश्वास में। marriage period comes, proposal, all the things are preparing by the family. और जो परिवार के अंदर उनके मैरिज के लिए प्रपोजल जब ढूंढ रहे थे सारी बातें, She said, "Okay, I will marry only a Christian और brother." उस बहन ने कहा कि मैं एक मसीही भाई से ही मेरा विवाह होगा। That father is very, very, very tough and he is having a government job. और उनका जो पिता था वो एक सरकारी नौकरी थी और बहुत ही ज्यादा सख्त वो थे, कठोर थे। He closed her in a room. और उस पिता ने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। With a thick rod, he started beating her. और एक बहुत ही मोटे डंडे से उसको मारने लगा। Still, she had not denied the faith. और फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। I never faced situations like that. मैंने अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति का सामना नहीं किया है। When you look up at Jesus gone through more than this. और जब मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि और अधिक यीशु मसीह उन सारी बातों से So ऊपर that गुजरा है। sister suffered all this thing. At last, she married a godly man. और उन सारे पीड़ाओं को उठाने के बाद उस बहन जो है एक विश्वासी भाई से उसका विवाह होता I है। want to say that changes father's heart also. और उससे उसके पिता का हृदय भी बदला। It took a long time, I think almost 1 year he was making the struggle to her daughter. और 1 साल लंबे समय तक अपनी बेटी को बहुत ही वेदना पीड़ा वो पिता देता था। I want to read 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. और दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 4 वचन में पढ़ना चाहूंगा। Therefore we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecutions and affliction which you endure. Chapter verse 4. यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। This is a plain indication of God's righteousness judgment, so that
you will be considered worthy of the kingdom of God. और यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। I want to read in message और मैं translation. मैसेज अनुवाद में पढ़ना चाहूंगा। We are so proud of you. और हम तुम में बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। You are so steady and determined in your faith despite all the hard times that you broadsided you. और इतने सारे कठिन हालात से गुजरने के बाद भी तुम्हारे विश्वास के अंदर और तुम्हारे निश्चय के अंदर तुम बहुत ही दृढ़ बने रहे। We tell everyone we meet in the churches all about you. और जब हम कलीसिया में मिलते हैं तो हम आपके बारे में ही बात करते हैं। All this trouble is a clear sign that God have decided to make you to fit for the kingdom of और ये God. सारी परिस्थितियां जब आप गुजरते हैं, ये बहुत ही एक साफ संकेत जो देता है कि परमेश्वर ने आपको उसके राज्य में फिट होने के लिए या सही बनाने के लिए बुलाया है। When I read this verse today morning, wherever the you comes, I thought of whether God can put my name in the name of you. और जहां इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो जहां पर यू या मतलब तुम्हारे बारे में लिखा गया, क्या मैं अपना नाम लेकर यहाँ पर इस वचन को पढ़ सकता हूँ? Can you imagine that when Jesus Christ comes back and Jesus Christ is telling about you, I am proud of you, Joseph? और जब यीशु मसीह संसार में आता है, क्या आप कल्पना करके विचार कर सकते कि यीशु मसीह इस प्रकार कहे, जोसेफ मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही गर्व करता हूँ। And you have steady and determined in your faith despite the hardship that I brought for you. और उन सारी कठिन हालातों को जो मैं तुम्हारे जीवन के अंदर लेकर आया था, और उसके बावजूद भी तुम तुम्हारे विश्वास के अंदर बहुत ही निश्चय और बहुत ही दृढ़ खड़े रहे। Brothers and sisters, that is a life God needs from you and me. भाइयों और बहनों, यही जीवन परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। The result of that one was the salvation of that criminal. और उसका परिणाम क्या होता है? सब कुछ जो यीशु मसीह ने सहा, उस जो डाकू जो डकैत था, उसका उद्धार हो जाता है। Just God speak to me through these verses. That's why I want to share it to you. और परमेश्वर इस वचन से मुझसे बात कर, इसलिए मैं आपसे इस वचनों को बांट रहा हूँ। Noah's life, we have seen that if you want in the restoration in your life, you need a silent life. और यहाँ पर नूह के जीवन से हम देखते हैं कि यदि आप अपने जीवन में एक पुनर्स्थापना को देखना चाहते हैं, तो आपको एक शांत जीवन को जीने की आवश्यकता है। If you want a deliverance in your life, from the sinful attitude, you are a silent dependence upon God. और यदि आपके जीवन के अंदर पाप से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक शांत रीति से परमेश्वर के ऊपर की निर्भरता आपके जीवन में होना जरूरी है। If you want a salvation of your whole family, unconfirmed relatives, we have to choose the Jesus path. और यदि आपके परिवार के जीवन के लोगों का, जितने परिवार में आपके उद्धार में नहीं, उनका उद्धार आप चाहते हैं, तो यीशु मसीह का जो पाथ जो था, यीशु मसीह का जो मार्ग था, उसको आपको चुनना होगा। Silently bearing all those things, and you and your father only hearing all those और things. पूरी तरह से शांत गुप्त रीति से उन सारी बातों को आप सहते हैं, और आपके और परमेश्वर पिता के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। Then only you can become a salt and light of this world. और तभी आप इस संसार के नमक, इस संसार की ज्योति तभी आप बन पाएंगे। Let God help you. मैं प्रभु आपकी सहायता करे।